हेलो एवरीवन। सो अब आज वीडियो में आज हम मशीन लर्निंग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 5। हम डिस्टिंग्विश बिटवीन द पैरामेट्रिक वर्सेस द नॉन पैरामेट्रिक मॉडल एंड द सुपरवाइज्ड वर्सेस अनसुपरवाइज्ड लर्निंग विद द एग्जांपल। सो मशीन लर्निंग मॉडल्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन their underlying assumption and the type of data and they process. Understanding these distinctions is fundamental to selecting the appropriate algorithm for a given task. So let's see the difference between the parametric and the non-parametric model. So parametric models make the specific assumption about the functions form of the relationship between the input features and the output. They have a fixed number of parameters which are estimated from the data. So parametric model से assume करते हैं कि डेटा किसी फिक्स्ड मैथमेटिकल फॉर्म को फॉलो करेगा। इनमें पैरामीटर्स की फिक्स्ड नंबर होती है, जैसे लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सिंपल लैंग्वेज में मॉडल कोई भी मेरी मॉडल है उसकी शेप होती है, वो होते हैं हमारे पैरामेट्रिक मॉडल। सो नॉन पैरामेट्रिक मॉडल्स क्या होते हैं? Non-parametric model do not make the strong assumption about the functional form. They are more flexible and can capture the complex relationships, often growing in complexity with the size of the data set. So ये मॉडल किसी फिक्स्ड फंक्शन को एज्यूम नहीं करते, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होते हैं, डेटा के साथ ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल डिसीजन ट्री, KNN and the SVM are the example of the non-parametric. The number of the parameter can grow with the data size. Okay. Now move to the supervised versus the unsupervised learning. So the approach to training a machine learning model depends heavily on the nature of the available data, specifically whether it includes labeled outcomes. So let's see the difference between the supervised and the unsupervised learning. So supervised learning में हम मॉडल को लेबल्ड डेटा देते हैं, मतलब इनपुट्स प्लस द करेक्ट आउटपुट्स। टास्क क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ये सब इसके हमारे in the supervised learning, the model learns from the labeled data, meaning each training example includes both input features and the corresponding correct output label. The goal is to learn a mapping from the input to output. Labeled data requires input output pairs for the training goal, predict the outcome for the new unseen data. इसका हमारा टास्क हो जाएगा क्लासिफिकेशन, मतलब स्पैम डिटेक्शन करना, एंड द रिग्रेशन मतलब हाउस के प्राइस का प्रेडिक्ट करना, हो जाएगा रिग्रेशन मतलब की वैल्यू को प्रेडिक्ट करना। Unsupervised learning. So unsupervised learning deals with the unlabeled data. The model tries to find the inherent patterns, structures, or relationships within the input data without any prior knowledge of the output labels. So unlabeled data works with the input data only, no target outputs. Goal: discover hidden structures or the distribution tasks, clustering example customer segmentation और डायमेंशनली रिडक्शन एग्जाम्पल PCA. सो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की बात करेंगे, इसमें डेटा के लेबल्स नहीं होते, मॉडल खुद पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे उसका टास्क हमारा हो जाएगा क्लस्टरिंग, डायमेंशनली रिडक्शन। एग्जाम्पल से हो जाएगा हमारा कस्टमर सेगमेंटेशन। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी. Let's discuss the second part of the question number 5th. So define the accuracy, precision, recall, F1 score and illustrate their computation using a confusion metric. So a confusion metric is a powerful tool for evaluating the performance of a classification model, especially for the imbalanced data sets. It provides a detailed breakdown of the correct and the incorrect predictions, enabling the calculation of the key metric. अब बात करते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स की। एक छोटा सा टेबल जो बताता है मॉडल ने कितनी सही और गलत प्रेडिक्शंस की हैं, जिसमें हमारा TP हो जाएगा फॉर द ट्रू पॉजिटिव, TN इज फॉर द ट्रू नेगेटिव एंड द FN इज फॉर द फॉल्स नेगेटिव एंड FP इज फॉर द फॉल्स पॉजिटिव। मतलब TP मतलब करेक्टली प्रिडिक्टेड पॉजिटिव इंस्टांसेस कितने थे, करेक्टली प्रिडिक्टेड नेगेटिव इंस्टांस कितने हैं, फॉल्स पॉजिटिव हो जाएगा इनकरेक्टली प्रिडिक्टेड पॉजिटिव वाले कितने हैं, हम टाइप 1 एरर बोल देते हैं। फॉर इनकरेक्ट प्रिडिक्ट किए हैं और वो नेगेटिव ही इंस्टांस थे। अब इसमें हम क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे। इसमें हमारे क्या क्या दे रखा है, जो हमारे 4 चीज़ें एक्यूरेसी, प्रिसिशन, रिकॉल एंड द F1 स्कोर। एक्यूरेसी ओवरऑल करेक्टनेस ऑफ द मॉडल, हमारा मॉडल टोटल से प्रिडिक्शंस कितने थे वो हमारी हो जाएगी एक्यूरेसी। इसका फॉर्मूला होता है TP प्लस TN अपॉन मेयर TP प्लस TN प्लस FP प्लस FN. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ 90 आउट ऑफ 100 प्रिडिक्शंस आर द करेक्ट, एक्यूरेसी हमारी क्या हो जाएगी 0.90 एज 90 डिवाइडेड बाई 100. Precision is the proportion of the positive identification that were actually correct. TP upon में TP plus FP is its formula. ना मूव रिकॉल हमारा इसका प्रिसिशन का मतलब जाएगा कि आप जितनी तुमने प्रेडिक्टेड पॉजिटिव से उसमें से कितने सही निकले हैं। रिकॉल सेंसिटिविटी, प्रोपोर्शन ऑफ द एक्चुअल पॉजिटिव डेट वर करेक्टली आइडेंटिफाइड, TP अपॉन में TP प्लस FN मतलब एक्चुअल पॉजिटिव में से कितने मॉडल ने पकड़े हैं। F1 score is the harmonic mean of the precision and the recall, useful for the imbalanced classes. 2 into precision into recall
अपॉन में प्रिसिशन प्लस रिकॉल इज हमारा फॉर्मूला फॉर द F1 स्कोर। F1 स्कोर का मतलब प्रिसिशन और रिकॉल का जो बैलेंस होता है वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा ना F1 स्कोर। Now move to the next question, which is the question number 6, which says the describe how the coefficient in the linear regressions are estimated using either the closed form equations or the gradient descent. So linear regression aims to model the relationship between a dependent variable and one or more independent variables by fitting a linear equation to observe the data. The core task is to find the optimal coefficient for the equation. लीनियर रिग्रेशन का मेन गोल होता है बेस्ट लाइन फिट करना। उस टाइम के कोफिशिएंट दो तरीकों से मिलते हैं, जैसे कि पहला मैं दे रखा था क्लोज्ड फॉर्म इक्वेशन एंड सेकंड वन इज द ग्रेडियंट डिसेंट। सो क्लोज्ड फॉर्म इक्वेशन हमारी इसमें क्या होता है, इसमें हमारा होता है सीधा फॉर्मूला लगा के हमें कोफिशिएंट मिल जाता है, छोटे डेटा सेट्स के लिए हमारा बेस्ट होता है क्लोज्ड फॉर्म इक्वेशन। और जो हमारा ग्रेडियंट डिसेंट होता है, इसमें हम एक आइटरेटिव मेथड होती है जो धीरे धीरे बेस्ट कोफिशिएंट तक पहुंचना चाहती है, और लार्ज डिस्टेंस के लिए हमारा ये बेस्ट होता है ग्रेडियंट डिसेंट। दोनों अपने अपनी चीज़ों के लिए बेस्ट हैं, बट इसके एडवांटेज बताते हैं गारंटीज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन वन स्टेप, नो लर्निंग rate turning. A disadvantage that requires matrix inversion which can be computationally expensive for the large feature sets. Time complexity big O of n cube. Advantage scalable to large data sets, adaptable to the various models. Disadvantage is a requires careful turning of the learning rate, prone to the local minima in the non-convex function. Now move to the another part of the same question. Explain the logistic regression and use the logistic function to calculate the probability of a class for a given input. Example, विषय हम बात करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज्ड फॉर द बाइनरी क्लासिफिकेशन डिस्पाइट इट्स नेम इट्स अ क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम दैट मॉडल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बाइनरी आउटकम 0 और 1 बेस्ड ऑन वन और द मोर इंडिपेंडेंट वन और मोर ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफिकेशन के लिए यूज होती है प्रोबेबिलिटी निकालने से लिए सिग्मॉइड फंक्शन इसमें यूज होता है। सिग्मॉइड का आउटपुट हमेशा 0 या 1 के बीच होता है। एग्जाम्पल अगर z इक्वल टू 2.5 हो तो प्रोबेबिलिटी अराउंड कितनी होगी 92%, इसमें हमारी प्रोबेबिलिटी होती है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन द कोर ऑफ द लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज द लॉजिस्टिक और द सिग्मॉइड फंक्शन विच मैप एनी रियल वैल्यूड नंबर इनटू अ वैल्यू बिटवीन द 0 एंड 1। दिस आउटपुट कैन बी इंटरप्रेटेड एज दिस। इसका हमारे पूरा कैलकुलेशन हमें एक एग्जांपल दे रखा है। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7, which says the write the k-means clustering algorithm. Discuss how initial centroids influence the results. K-means is an unsupervised learning algorithm used for partitioning a datasets into the k distinct non-overlapping subgroups clusters. The goal is to minimize the sum of the square distance between the data points and their असाइन क्लस्टर्ड सेंट्रॉइड। सो के मीन्स एक अनसुपरवाइज एल्गोरिथम है जो डेटा को क्लस्टर्स में डिवाइड करता है। अब हमारे इसके स्टेप्स हैं वो देखेंगे सब। इसमें हमारे स्टेप्स हैं इनिशियलाइजेशन, असाइनमेंट स्टेप, अपडेट स्टेप, एट्रेशन। मतलब पहले के सेंट्रॉइड जो रैंडमली को चूज कर लो, हर डेटा पॉइंट को नियरेस्ट सेंट्रॉइड के पास भेजो, नए सेंट्रॉइड कैलकुलेट करो, देन रिपीट करो जब तक हमारे सेंट्रॉइड स्टेबल ना हो जाए। यही हमारा कहते हैं स्टार्टिंग सेंट्रॉइड। अब influence of the initial centroid. So the initial placement of the centroid significantly impacts the final clustering result. Poor initial choices can lead to the suboptimal solutions such as local optima, varying cluster size, इनकंसिस्टेंट रिजल्ट। ये तीन चीज़ें इस कारण सबसे ज़्यादा हमारा इन्फ्लुएंस क्या होता है इनिशियल रिजल्ट का, ये तीन चीज़ें नहीं होती तो हमारा बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। जो स्टार्टिंग सेंट्रॉइड होता है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, गलत सेंट्रॉइड से हमारे गलत क्लस्टर्स भी बन जाते हैं, इस कारण से हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ना मूव टू द अनदर पार्ट ऑफ दैट सेम क्वेश्चन। राइट द के नियरेस्ट नेबर के एन एन एल्गोरिथम यूजिंग द यूक्लिडियन डिस्टेंस। सो के नियरेस्ट neighbor is a simple non-parametric lazy learning algorithm used for both classification and the regression task. It makes predictions based on the k closest data points in the training set, है ना। ये इसकी हम बात करेंगे। तो के एक सिंपल और बहुत ही पावरफुल नॉन पैरामेट्रिक एल्गोरिथम है। अब यदि हम कुछ स्टेप्स की बात करें, क्या स्टेप्स होती हैं क्लासिफिकेशन के लिए। चूज द के, कैलकुलेट डिस्टेंस, फाइंड द के नियरेस्ट एंड देन वोट फॉर द क्लास। तो इसमें सबसे पहला जो चीज़ होती है वो हमारे पास क्या होती है, पहले हम के को चूज करते हैं, देन नए पॉइंट तक डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद भी नियरेस्ट के नेबर होता है उसको फाइंड करेंगे, देन मेजोरिटी वोट लेके क्लास को असाइन कर देते हैं। डिस्टेंस जो होता है मोस्टली वो यूक्लिडियन होता है, तो हमारी यूक्लिडियन वाली होगी। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या होता है, यूक्लिडियन डिस्टेंस हमारे डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच का एन डायमेंशनल स्पेस पे, ये हमारा उसका फॉर्मूला ही होता है हमारा यूक्लिडियन डिस्टेंस, जिसको हमने पिछले प्रीवियस वीडियो से भी डिस्कस कर चुके हैं। Now move to the question number 8, which says the compare the decision trees
random random forest and the boosting highlighting strength and the weakness of the each. So decision trees are the foundational but ensembles methods like the random forest and the boosting build upon them to achieve the significantly higher accuracy and robustness by combining the multiple models. इसकी बात है डिसीजन ट्री की, तो ये हमारा बहुत ही ईजी होता है हमें इसको इम्प्लीमेंट करना, इंटरप्रेट करना, लेकिन ओवरफिटिंग करता है। रैंडम फॉरेस्ट की बात करेंगे तो मल्टीपल ट्रीज का कॉम्बिनेशन होता है, हायर एक्यूरेसी है, लेस ओवरफिटिंग होता है। और जो बूस्टिंग है इसमें हमारे ट्रीज जो होते हैं सिक्वेंशली बिल्ड होते हैं, पहले वाली की जो मिस्टेक होती है वो नेक्स्ट ट्री में क्या होती है, इंप्रूव हो जाती है। इसमें बूस्टिंग वाली चीज़ में हमारी ये वाली चीज़, इसमें हमारी सिंगल ट्री स्पिल्स। सबसे पहले हमें दे रखा था डिसीजन ट्री, उसके बाद में हमें दे रखा है हमारा किस डिसीजन ट्री, उसके बाद में हमें दे रखा है हमारा रैंडम फॉरेस्ट के बारे में, फिर ये वाला जो है कि हमारा बूस्टिंग के बारे में, पर मेंशन नहीं है बट ये हमारा उस अकॉर्डिंग है। सो नाउ मूव टू द बी पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। Explain the architecture and the component of the Hadoop HDFS yarn MapReduce or describe the Spark and its advantages over the MapReduce. So Apache Spark is a powerful open source unified analytics engine for the large scale data processing, offering the significant advantages over its predecessor Hadoop MapReduce. So in the memory processing, unified stack performance, ease of यूज एंड द फॉल्ट टॉलरेंस। सो स्पार्क बिग डेटा जो होता है वर्ड का वो हमारा एक सुपरस्टार होता है। जब इसके एडवांटेजेस हैं तो हमारा इन मेमोरी प्रोसेसिंग, मतलब मेमोरी प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता है। ये स्पार्क प्रोसेस डेटा इन मेमोरी अक्रॉस द क्लस्टर ड्रास्टिकली रिड्यूसिंग डिस्क IO ऑपरेशंस मैप रिड्यूस इन द कॉन्ट्रास्ट, है ना। अब बात करें हम यूनिफाइड स्टैक की, इसके अंदर कहते हैं हमारा SQL का हम यूज़ करते हैं। जब हमारी स्ट्रीमिंग ML होती है, स्पार्क प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम with the integrated libraries for the various types Spark SQL and the Spark streaming. Now third one is the performance. Spark can be 10x to 100x faster than the MapReduce. Spark जो हमारा फास्टर होता है 10x से लेकर 100x तक का फास्टर होता है MapReduce से, तो बहुत एफिशिएंट है। ईज ऑफ इसको ईजी, बहुत ईजी है कि पाइथन उसका जो स्पार्क ऑफर्स करता है सच API जो पाइथन यूएस का जावा वाली। फॉल्ट टॉलरेंस, स्पार्क्स रेसिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट्स RDDs प्रोवाइड्स एफिशिएंट फॉल्ट टॉलरेंस बाय द लाइनेज। इसमें हमारा कहते हैं स्टोरेज फॉल्ट टॉलरेंस वाली चीज़ें हमें मिलती हैं। So now move to the next question. Obtain the basic logic gates from the neural network. Summarize them in the table. क्यों हंस रही थी? अभी बस लास्ट क्वेश्चन था। चला आवाज बढ़ाने। लास्ट क्वेश्चन। Start the question number 9. Obtain the basic logic gates from the neural network. Summarize them in the table with the number of the neurons, activation functions, and the back propagation in the neural networks, if any. So neural networks can be configured to the mimic fundamental logic gates by carefully selecting weights, biases, and the activation function. This demonstrates their foundational computational power. इसमें हमारे जो लॉजिक गेट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, एंड और नॉट, नैंड, नॉर एंड द जॉर। इनके न्यूरॉन्स दे रखे हैं, सब में कितने कितने न्यूरॉन्स होते हैं। फिर एक्टिवेशन फंक्शन सबको क्या क्या होता है, एंड द बैक प्रोपगेशन हमें सबका दे रखा है। न्यूरल नेटवर्क सिंपल लॉजिक गेट्स भी बना सकते हैं। जो एंड और नॉट जो होते हैं उनमें सिंगल न्यूरॉन होता है, और जो हमारा जॉर वाला है उसमें हमारे दो होते हैं, हिडन लेयर रिक्वायर्ड होती है। बैक प्रोपगेशन स्टेप्स की बात करेंगे, पहली फॉरवर्ड पास, सेकेंड में हम लॉस कैलकुलेट करते हैं, थर्ड होती है बैकवर्ड पास, एंड फोर्थ में हम क्या करते हैं, हमारे वेट को अपडेट कर देती हैं। ये हमारी 4 इसकी ना उसमें बैक प्रोपगेशन वाले में स्टेप्स दे रखी हैं। नॉट ओनली फॉर सिंपल गेट, पैरामीटर आर सेट मैनुअली, सब में सेम दे रखा है। लॉजिक गेट की इंप्लीमेंटेशन की यदि हम डिटेल्स बात करेंगे उसे कैसे हम उसको करते हैं। फॉर द बेसिक लॉजिक गेट लाइक द एंड और अ सिंगल न्यूरॉन विथ द अप्रोप्रिएट वेट्स एंड द बायस कैन अचीव द डिजायर्ड आउटपुट। जॉर रिक्वायर्स एटलीस्ट वन हिडन लेयर ड्यू टू इट्स नॉन लीनियर सेपरेबिलिटी। जिसमें फर्स्ट दे रखा है वो मैं दे रखा था एंड गेट। सो आउटपुट इज वन ओनली इफ ऑल द इनपुट्स आर द वन। एग्जाम्पल वेट 0.5 0.5 बाई 0। इस आउटपुट वन होगी, सारे इनपुट्स क्या होंगे हमारे वन होंगे। और गेट में हमारा आउटपुट वन होगा यदि हमारा कोई भी एक इनपुट भी क्या होगा, वन होगा। नॉट गेट में जो हमारा इनपुट है उसका क्या करता है, हमारा उल्टा कर देता है। जॉर गेट में आउटपुट इज वन होगा, इफ इनपुट्स हमारे होंगे डिफरेंट होंगे। 0 1 है, 1 0 डिफरेंट इनपुट्स हैं, तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट वन मिलेगा। अब बात रहे हैं बैक प्रोपोगेशन की इन द न्यूरल नेटवर्क। सो बैक प्रोपोगेशन इज द
Backpropagation is the cornerstone algorithm for the training multi-layer neural network. It adjusts the weight of the network to minimize the error between the predicted and the actual outputs. इसमें हम बात करेंगे वही हमारे चारों चीजें फॉरवर्ड पास, कैलकुलेट लॉस, बैकवर्ड पास एंड द वेट अपडेट. सो फॉरवर्ड पास होता है इनपुट डेटा फ्लोज थ्रू द नेटवर्क प्रोड्यूसिंग एंड आउटपुट प्रिडिक्शन. इसमें हमारा इनपुट डेटा फ्लोज होता है आउटपुट्स के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं आउटपुट प्रिडिक्शंस को. कैलकुलेट द लॉस, इसमें हमारा एरर बिटवीन द प्रिडिक्शन एंड द ट्रू values computed. Third one is the backward pass. The error is propagated backward through the network, calculating the gradients for each weight and the bias. Fourth is the weight update. Weight and biases are adjusted using an optimization algorithm. Comparing the neural network architecture. So different neural network architecture are designed to excel at specific types of tasks, leveraging unique structural advantages. CNN, जिसको बोलते हैं कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क. RNN इज द रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क. GANS इज द जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क एंड द ट्रांसफर लर्निंग इज लिवरेजिंग प्री ट्रेन्ड मॉडल. Now move to the CNN. So CNN are specialized for the processing data with a grid like topology such as images. Their architecture allows them to automatically and adaptively learn the spatial hierarchies of the feature. तो इसका आर्किटेक्चर, इसके इमेजेस, इसका आर्किटेक्चर जो कॉन्वोल्यूशनल उसमें लेयर्स होती है, इसके आर्किटेक्चर जो होता है उसके अंदर हमारे लेयर्स होती हैं, पोकुलिंग लेयर्स एंड द फुली कनेक्टेड लेयर्स होती हैं, है ना. और इसके बात करेंगे एप्लीकेशंस की, तो हमारे इमेज क्लासिफिकेशन में ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इमेज सेगमेंटेशन, फेशियल रिकॉग्निशन और मेडिकल इमेजिंग एनालिसिस में हमारे साथ यूज होता है. फिर बात करेंगे RNN की, जिसे हम बोलते हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क. इसमें हमारी एक टाइम बेस्ड मेमोरी होती है, जैसे हमारा एग्जांपल हो गया NLP एंड द स्पीच. और इसका हमारा एप्लीकेशन जो है वो हमारे स्पीच रिकॉग्निशन, मशीन ट्रांसलेशन, टाइम सीरीज प्रेडिक्शन, वीडियो एनालिसिस हमारा यूज होता है. Generative adversarial network GANS. GANS consists of the two competing neural networks, a generator and a discriminator, that work together to generate the new realistic data instances. आर्किटेक्चर क्रिएट्स न्यू डेटा सैम्पल्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन द. तो इसमें हमारा एक जनरेटर होता है, एक हमारा डिस्क्रिमिनेटर होता है. और ये हमारा कहाँ पर यूज होता है, तो ये हमारा यूज होता है इमेज जनरेशन में, रियलिस्टिक फेस वाली इमेज बनानी उसमें यूज होगा, डेटा ऑगमेंटेशन में, स्टाइल ट्रांसफर में, ड्रग डिस्कवरी में हमारे ये यूज होता है. उसका तो दे रखा है ट्रांसफर लर्निंग. सो ट्रांसफर लर्निंग इज अ मशीन लर्निंग टेक्निक वेयर अ मॉडल trained on one task is the repurposed for a second related task, significantly reducing training time and the data requirements. ये हम इसके एप्लीकेशन हमारी क्या है. सो इसमें हमारा कहते हैं, इसमें जो भी हमारा ऑलरेडी ट्रेनिंग मॉडल्स को दूसरे टास्क पर यूज़ करना होता है, फास्ट ट्रेनिंग होती है, लेस डेटा होता है. इसमें हमारा मेडिकल इमेज डायग्नोसिस में, ऑटोनॉमस ड्राइविंग में ये हमारा यूज होता है. सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे. थैंक यू.